I would like to welcome everyone in SP Smart Hybrid Schooling System. बच्चे, today we are going to discuss about CUET UG English syllabus. ठीक है. First, it is very important to know what type of question would be coming, what we have to prepare for English examination. So I would like to discuss the syllabus with you all. See, you will be getting three type of different passages. ठीक है. One passage would be based on the factual comprehension. It would be a comprehension that would be factual. Once you are going to do the very first passage and you will be switching over to the next passage would be purely based on the narrative comprehension, and the third one is totally depend on the literary. ठीक है. अब बेटा, as per your understanding regarding the three passage, you need to answer the given question. The maximum word limit goes from 300 to 500. It varies from 300 to 500. And what else you need to take care in your English paper? You need to be thorough with verbal ability and grammar. What are the topics that need to be covered in your verbal ability and grammar is the very first and the very important topic would be tenses. The second one would be the phrasal verbs and conditions. The third one would be the active and passive voice, part of speech, sentence completion, confusing words and error spotting, analogies and spelling errors, adverb and narration. ठीक है बच्चे. Tenses we have already covered. Phrasal verbs and condition हम cover करेंगे. Active passive जो है ये आपको क्लास 12th में करवाया होगा. You don't have to worry. इसको भी हम दोबारा से recap करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं. ठीक है. द बेसिक इंग्लिश ग्रामर वी विल बी कवरिंग इट. सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है बच्चे? आपको पैसेज पढ़ना है और यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है. एरर स्पॉटिंग होती है. आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें से आपको एरर स्पॉट करना है. एनालॉगीज एंड स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग किसी वर्ड के गलत दिए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू गो विद द राइट ऑप्शन. एडवर्ब और नरेशन आपको करनी है. ठीक है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी दी चूजिंग द करेक्ट वर्ड. दिस सेक्शन ऑफ द इंग्लिश सिलेबस फॉर सीयूटी इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक. अब इसमें चूजिंग द करेक्ट वर्ड में किस तरह के टॉपिक आते हैं बच्चे? सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेकंड आता है मैच द कॉलम और मैच द फिलर. फिर जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है. यू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कैन come for your CUT examination. The very first one is sentence transformation, sentence rearrangement and para jumbles. ये सभी टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. The very much important thing that you need to practice every day is the vocab building. बेटा, जितना vocabulary आपके पास होगा उतना आपके लिए पेपर देना easy हो जाएगा. You will be giving paper more easily, right? If you have good vocab in your kitty, right? Okay. Antonym, synonym. Antonym होते हैं the word with the same meaning. Synonyms होते हैं words with the same meaning और antonyms होते हैं opposite words. ठीक है. Word meaning and phrases and clauses. ठीक है. If I would like to give you the overview about your examination. टोटल आपको बच्चे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश के CUT एग्जामिनेशन में. ठीक है. It is mandatory to attempt 50 questions out of the asked 50 questions. The total weightage of your English paper would be 250 marks. You will be getting 5 marks for each right answer, and if you're going to give wrong answer, then definitely negative marking is there. You will get deduction of -1 for each wrong answer type. Your paper is totally and purely based on MCQ. That means you have to go through the passage. You will be provided with the question with the 4 option, and you need to opt for the correct or mostly correct option. The time duration that you will be getting to complete your English examination would be 60 minutes. So beta, is there any problem with the topics that needs to be covered for your CUET or the paper pattern or the marking scheme? Is there any doubt? If there is any doubt, please feel free to ask me your doubts. Class, is there any doubt? I want everyone to respond. No, sir.
No. So we are moving up with the very first topic, and kindly allow me a minute so that I can share my screen with you all. And the very first topic that would be completed by us in today's class would be idioms and phrases, right? Give me a moment, let me share my screen with you all, and I hope my screen is being visible to everyone. Is my screen visible to everyone? Yes, sir, visible. Yes, sir. Okay. बेटा आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस विद यू, बट ऐसा नहीं है कि इनमें से ही आएगा. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद द असाइनमेंट्स, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद मोर कंटेंट, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू गो थ्रू दैट असाइनमेंट और कंटेंट at your home so that you can have better grip over the topics that we are going to cover in your CUET classes. Clear है बच्चे? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So the very first idiom is actions speak louder than words. क्या मतलब होता है actions speaks louder than word? इसका मतलब होता है what people do is more important than what they say. बातों से नहीं होता है कुछ, खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है, उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से एक्शंस आपके दिखाई देती हैं, उसकी विजिबिलिटी होती है. अगर मैं कहूँ कि ओके आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट टॉकिंग एंड टॉक्स आर बेसलेस, बट अगर मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊं, है ना, तो दैट मेक सेंस. सो इट मीन्स एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स. इज इट क्लियर क्लास? Class, is it clear? Yes, sir. Okay. So how we are going to use it in sentence? Let me give you an example so that it will give you a better clarity over the asked idiom. The example would be, I know you say you are sorry, but I need to see you make some changes in your behavior before I can believe you. Actions speak louder than words. I know you say you are sorry. मुझे पता है कि तुम कह रही हो सॉरी, और ये तुम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, बट आई नीड टू सी यू मेक सम चेंजेस इन योर बिहेवियर. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बिहेवियर में प्रैक्टिकल चेंजेस करें, ठीक है, बिफोर आई कैन बिलीव यू, आप पे भरोसा करने से पहले. इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स. क्लियर है बच्चे? Is it clear? Okay. So we are moving to next idiom. Yes, sir. The next idiom is all good things must come to an end. क्या idiom है? All good things must come to an end. इसका मतलब है nothing is permanent, है ना. कोई भी चीज इस दुनिया में जो है वो परमानेंट नहीं है. अगर इसको ट्विस्ट करके बोलें, so the meaning is nothing lasts forever. क्या है? नथिंग लास्ट फॉर एवर, राइट. अब बच्चे अगर हम बात करें इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? आई नो वी आर हैविंग ए ग्रेट टाइम, बट ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, वी विल हैव टू से गुड बाय इवेंचुअली. क्या है? आई नो वी आर हैविंग ए ग्रेट टाइम. मुझे पता है कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार समय जो वक्त है वो चल रहा है, बट ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एंड. जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ जो है वो एक एंड में आती है. वी विल हैव टू से गुड बाय इवेंचुअली. हमें अब एक दूसरे को फाइनली गुड बाय कहना है. तो इसका क्या मतलब है? ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड. क्लियर है बच्चे? Is it clear? Okay. So the next idiom is an apple a day keeps the doctor away. क्या है? An apple a day keeps the doctor away. इसका क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब होता है healthy foods. Okay. Let me share my screen again with you all. There is another idiom. There is another idiom which says an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. इसका मतलब है healthy foods can help you stay healthy. अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आप फिट रहोगे, और अगर आप फिट रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल ए डे। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल ए डे फॉर द पास्ट मंथ। मैं पिछले एक महीने से अच्छी डाइट ले रहा हूँ, मैं एक पिछले महीने से हेल्दी खाना खा रहा हूँ और मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। एंड आई हैवंट बीन सिक वंस, एक बार भी मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे, तो हमें डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. Okay. So we are moving to next one. The next one is barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree का मतलब है you are looking in the wrong place for something. आप जब कुछ ढूंढते हो, मगर जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो एक गलत जगह में ढूंढ रहे हो, उसको कहते हैं barking up the wrong tree. इसका एग्जाम्पल क्या बच्चे? इसका एग्जाम्पल है I have been trying to find my keys all day. मैं पूरे दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी चाबियों को ढूंढ लूं, बट आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बट मैं गलत प्लेस में देख रहा हूं, मैं गलत जगह देख रहा हूं। दे आर प्रॉबली इन माई पॉकेट, मगर ये तो मेरे पॉकेट में ही पड़ी थी। तो आई एम नॉट लुकिंग एट द राइट प्लेस, मैंने पॉकेट में नहीं देखा, है ना। और मैं पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया इसको गलत जगह पे ढूंढते हुए, इसलिए कहते हैं आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है when you are looking for something in the wrong place. Clear है बच्चे? Yes. Okay. Yes, sir. The next idiom is bite the bullet. अब bite the bullet क्या होता है बच्चे? bite the bullet होता है do something that you don't want to do but know that you have to do. आपको कुछ करना पड़ रहा है जिसे आप चाहते नहीं हो असली में करना, आपका मन नहीं कर रहा वो चीज आप करने में, मगर आपको फिर भी वो चीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ रही है, फिर भी वो चीज जो है करनी पड़ रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस। ठीक है, इसको कहते हैं बाइट द बुलेट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? इसका एग्जाम्पल है आई नो आई हैव टू गिव ए प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल कंपनी। मुझे पता है कि मुझे पूरी कंपनी के सामने एक प्रेजेंटेशन जो है वो देना है, बट आई एम रियली नर्वस। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड डू इट। मुझे ना चाहते हुए भी, मेरा मन नहीं है, फिर भी मुझे ये चीज़ करनी है। बिना मन के कोई काम करना इज बाइट द बुलेट। क्लियर है बेटा? ओके। Yes, sir. बॉइलिंग मैड। अब बॉइलिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल बेटा? अगर हम बात करें बॉइलिंग मैड की, तो बॉयल का क्या मतलब होता है? बॉयल, दूध हम बॉयल करते हैं ना, उबाला आना। उबाला आना क्या हो गया? गुस्सा आ जाना, है ना, एकदम से गुस्सा आ जाना, बॉइलिंग मैड, राइट। आग बबूला हो जाना इज बॉइलिंग मैड, राइट। एकदम से गुस्सा आ जाना, आग बबूला हो जाना इज बॉइलिंग मैड। वेरी एंग्री या गेटिंग अनॉयड। इसको हम किस तरह से यूज करेंगे बच्चे? इसको हम यूज करेंगे आई वॉज बॉइलिंग मैड व्हेन आई फाउंड आउट दैट माई कार हैड बीन स्टोलन। मैं गुस्से से पागल हो गया जब मुझे पता लगा कि मेरी जो गाड़ी है वो चोरी हो गई है। ओके, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका कोई वैल्यूएबल चीज जो है वो चोरी हो गया? क्लास, यस नो? हैव यू लॉस्ट योर वन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स सम डे? कभी आपने लूज किया अपने Yes, कुछ वैल्यू? हाउ यू Yes, फेल्ट yes, आफ्टर sir. इट? हाउ यू फेल्ट? Sad. सैड, अनॉयड, गुस्सा आता है, यार इतनी मेहनत से मैंने ली थी, यहाँ इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मिला था, कहाँ खो गया, कैसे खो गया? सो यू बॉइल मैड, राइट? ओके। ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग मीन्स व्हेन यू आर सेइंग ऑल द बेस्ट टू समवन, व्हेन यू आर सेइंग good luck to someone, it means break a leg, right? For example, when we have to use break a leg in sentence, we can use in this way: good luck on your big audition. Break a leg yani I'm wishing you best of luck for this big audition that you are having right now, and all the best. Break a leg. Clear है बच्चे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट?
No, sir. ओके, सो ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का क्या मतलब होता है? जो घर पे बेकन लेके आता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेकन? कभी सुना है ये वर्ड बच्चे, बेकन? व्हाट डू यू मीन बाय बेकन बच्चे? बेकन इज ए Sir. टाइप ऑफ नॉन वेज फूड, ठीक है? बेसिकली बेकन बिलोंग्स टू पोर्क, हैम्स एंड बेकन। कार्टून्स में देखे हैमबर्गर, सुना है Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. बेकन इज ए नॉन वेजिटेरियन फूड। अब ब्रिंग होम द बेकन मतलब जो घर पे रोटी लेके आ रहा है। क्या मतलब हुआ? अर्न मनी टू सपोर्ट योर फैमिली। मतलब घर में अगर खाना आएगा तभी तो परिवार के लोग खाएंगे और परिवार रन करेगा, है ना? तो इसका मतलब हो गया अर्न मनी, पैसा कमाना, सो डैट वी कैन सपोर्ट दी फैमिली। तो इसको हम किस तरह से सेंटेंस में लिखेंगे बच्चे? इसको हम लिखेंगे माई हस्बैंड इज द वन हु ब्रिंग्स होम द बेकन इन आवर फैमिली। मेरे पति हैं जो घर पे पैसा कमा के लाते हैं और हमारी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके। बर्न दी मिडनाइट ऑयल। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? कि देर रात तक पढ़ना, है ना? वर्क लेट इन दी नाइट, पढ़ना या कोई भी काम करना, है ना? जब हम देर रात तक कोई काम करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क लेट इन टू दी नाइट, ठीक है? जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में यूज करें तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इसको सेंटेंस में यूज करेंगे आई हैव बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ट्राइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। कि मैं देर रात तक काम करता रहता हूं ताकि जो मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिला है उसे मैं टाइमली खत्म कर सकूं। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके। कम हेल और हाई वाटर। क्या है? कम हेल और हाई वाटर, नो मैटर व्हाट हैपन्स। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू द पार्टी कम हेल और हाई वाटर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं पार्टी में जा रहा हूं। देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप मी इन गोइंग और अटेंडिंग दिस पार्टी। क्लियर है बेटा जी? ओके। कट योर लॉसेस। कट योर लॉसेस का क्या मतलब होता है? कट योर लॉसेस का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट समथिंग एंड मूव ऑन। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने किसी चीज को खो दिया है, ठीक है? आपने किसी चीज को लूज कर दिया है और आप उस चीज को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाते हो, उसे कहते हैं कट योर लॉसेस। अब इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? इसको हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं आई हैव लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। मैंने इस इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पैसा जो है वो खो दिया है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू कट माई लॉसेस एंड मूव ऑन। मगर अब ये समय आ चुका है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मेरा पैसा जो है वो लूज हो गया है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने लॉसेस को मतलब कि एक्सेप्टेंस रख के मैं अपनी लाइफ में या अपनी इन्वेस्टमेंट्स में आगे बढ़ूं। मैं इस पोर्टल में इन्वेस्ट ना करूं या इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट ना करूं, बट मैं किसी और में करूं, ये जानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि मुझे पुराने पोर्टफोलियो में लॉस हो गया है। क्लियर है बच्चे? क्लास? Sir. ओके। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब है कि किसी भी सक्सेस से पहले उसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? डोंट सेलिब्रेट सक्सेस बिफोर इट्स एक्चुअली हैपेंड। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट ही नहीं करना है उसके अचीव होने से पहले। तो इसको हम किस तरह से एग्जाम्पल में यूज करेंगे बेटा? हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब। मैं अपनी नई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू काउंट माई चिकन्स बिफोर दे हैच। आई नीड टू मेक श्योर इट गेट द ऑफर फर्स्ट। यानी मैं अपनी नई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मगर मैं अपनी
इस सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करूंगा जब तक कि ऑफर लेटर मेरे हाथ में नहीं आ जाती। क्योंकि ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर गिव यू कंफर्मेशन कि आपका जो जॉब है वो कंफर्म्ड है। जब तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता तब तक कुछ भी कंफर्म्ड नहीं होता है। क्लियर है बच्चे? ओके, द नेक्स्ट इडियम इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आई एम गोइंग टू रिपीट इट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट हु इज डूइंग इंजीनियरिंग, है ना, जो जिसका नॉन मेडिकल है और ही वांट टू डू इंजीनियरिंग। अब वो चाहता है कि उसे आईआईटी मुंबई मिले, राइट, और उसने बाकी कॉलेजेस के फॉर्म ही नहीं भरे। तो उसने क्या किया? उसने एक ही बास्केट में सभी एग्स रख दिए। मतलब कि उसने आईआईटी मुंबई के पीछे अपने बाकी सारे कॉलेजेस को छोड़ दिए। मगर ये कहता है, इस इडियम का मतलब है कि हमें एक जगह के पीछे अपनी बाकी अपॉर्चुनिटीज लूज नहीं करनी चाहिए। सो डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग। क्लियर है बेटा? इसको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करेंगे? इसको इस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब्स जस्ट इन केस। जस्ट इन केस अगर मेरे को एक जहां पे मैं चाहता हूं वहां पे मुझे जॉब नहीं मिले तो मैं मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करूंगा। जस्ट इन केस अगर मेरा ड्रीम जॉब मुझे नहीं मिला, आई शुडंट लेफ्ट जॉबलेस, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो इसको कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Okay. So the next idiom is easy come easy go. Easy come easy go का मतलब है जो जितनी आसानी से आता है वो उतनी आसानी से निकल भी जाता है। Okay? It means money or other things that are easily earned are also easily lost. ठीक है? I give you a sentence to use this idiom. Yesterday only I earned 5,000 rupees while playing in Dream 11, but today I lost all the money in hospital expenses as my mother got admitted instantly as she having a stomach ache। यानी कल मैंने ड्रीम 11 में खेलते हुए पैसा कमाया, 5,000 कमाया, मगर आज मेरी मदर हॉस्पिटलाइज होगी क्योंकि उनको पेट में दर्द हुआ और मैंने अपने सारे पैसे जो हैं वो गवा दिए। तो इजी कम इजी गो, जो पैसा आसानी से कमाया जाता है वो उतनी आसानी से ही निकल जाता है। क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ओके, सो आई वुड लाइक टू डू सम ऑफ द सिनोनिम्स with you all. Okay, the very first synonym is abandon. Abandon क्या होता है? लीव और forsake, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज के लिए कुछ करना। ठीक है? ए बेटर होता है ए कंपाइस। एब्निगेशन, डिनाइल, डिनाइल क्या होता है? किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। डिनाइल इज ए रिजेक्शन। ठीक है? एब्रिगेट, कर्टिल, किसी चीज को छोड़ देना। अबेंडन, प्लेंटीफुल, बहुत सारा, है ना, मोर इन क्वांटिटी। ठीक है? बिहेवियर, बिहेवियर डिमोर, मतलब कि एटीट्यूड होना, राइट। तो बेटा आई वुड लाइक टू डिस्कस द असाइनमेंट विद यू ऑल अगेन। मैंने कल आपके साथ असाइनमेंट एक शेयर की थी। हैव यू गॉन थ्रू द असाइनमेंट? आपने असाइनमेंट की है बच्चे? वो वाली बच्चे जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दी थी, हैव यू गॉन थ्रू दैट असाइनमेंट? यस, नो? क्लास? ओके, सो आई वुड लाइक यू टू आंसर द असाइनमेंट विच वॉज शेयर्ड बाय मी yesterday. ठीक है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होता है बेटा? अगर आपने किया तो बताओ मुझे जल्दी से। Full of joys. फुल ऑफ जॉयस, वेरी गुड।
सेकेंड वन, डाइज इन हार्नेस, क्या मतलब हुआ? डाई इन हार्नेस क्या होता है बेटा? क्लास, आर यू डूइंग योर असाइनमेंट्स एट होम? जो आपके लिए Sir, die with honor. डाई विद ऑनर, वेरी गुड. क्राई फॉर द मून, व्हाट डू यू मीन बाय क्राई फॉर द मून? To wish for something To impossible. wish for something impossible. Very nice. Only few students are answering. I hope everyone hasn't done this work, right? Have a feet of clay. Have a feet of clay मतलब have a feet of No clay. noise of walking. Very nice. No noise of walking. Very good. Play to the gallery. Beta, hurry up. Play to the gallery. What would be the answer? But I didn't hear. I didn't hear. क्या बोल रहे हो बच्चे? I didn't hear. Play to the gallery क्या होता है? Attempt to appeal to popular taste. Very good. Attempt to appeal to popular taste. Cry over spilt milk. Spilt milk क्या होता है? जो दूध गिर गया है. complain about a loss or failure. Very good. Very good. Hand in glove. Hand in glove. Very close to each other. क्योंकि आपका जो हाथ ग्लव के अंदर जाता है तो आपका हाथ जो है वो वेरी क्लोज हो जाता है ना? ओके. सो द नेक्स्ट वन इज ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस क्या हो गया? ब्रेक द आइस. To speak first after loss. वेरी नाइस. हु आंसर दिस क्वेश्चन? किसने Sir, आंसर? me Arya. आर्या. वेरी गुड. ब्रेक द आइस ये एक्टिविटीज होती हैं जो आप करते हो जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो. या लेट मी गिव एन एग्जांपल. व्हेन यू विल बी एंटरिंग योर कॉलेज एंड you will be interacting for the very first time with your teacher. They will be introducing in some colleges they introduce icebreakers. Icebreakers क्या होते हैं? वो आइस ब्रेक करने के काम आते हैं ताकि आप अपनी हेजिटेशन को छोड़कर बात करना शुरू करो. वेरी गुड आर्या. स्क्रीम ब्लू मर्डर. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीम ब्लू मर्डर? Make a great deal of noise and protest. And protest. Very good. Very nice. Small fry. Person or thing of A person or a thing of a little importance. स्मॉल फ्राई होता है बेटा ह्यूमरस. ह्यूमरस कैसे होगा? ह्यूमरस का क्या मतलब होता है? हंसी मजाक करना. जब हम किसी के साथ हंसी मजाक करते हैं तो उसको हल्का सा फ्राई करते हैं ना. मजाक बुरा भी होता है ना? तो इसका मतलब होता है ह्यूमरस. ओके. बाय हुक का बाय क्रुक. व्हाट डू यू मीन By बाय? any means. By any means. बाय एनिमी. कैसे भी. ठीक है. ओके. टू क्राई वुल्फ. Give false alarm. टू गिव फॉल्स अलार्म. वुल्फ क्या होती है ना? वुल्फ की तरह साउंड प्रोड्यूस करना. ठीक है. मतलब फॉल्स अलार्म देना. टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक. to overcome someone. नो. Make completely. धुएं में सब कुछ खत्म कर देना. To ruin oneself. रून कर देना. चीजें खत्म कर देना. एंड कर देना. ठीक है. टू रून वन सेल्फ. ठीक है. टर्न द टेबल. To reverse the condition. वेरी To गुड. reverse the condition. To reverse the condition. Very good. Progel lonely flower. ये flower है. Foro. Foro means flower. क्या होगा? To without the help of others. Do without the help of others. Okay. बाकी क्या कहते हैं? You can also guess. Remain non-aligned. Remain
नॉन अलाइंड। ओके, Do without the help of others. पहले मुझे ये बताओ फरो का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फरो? एनी आइडिया? बेटा गैस करो, बहुत ही सिर्फ कॉमन। लाइन होती है। क्या होती है? ओके, एक लाइन होती है ना फील्ड, मतलब हाँ वेरी गुड। उससे क्या सीड्स कहते जिसमें हैं? प्लांट होते हैं। क्यारियां, देख क्यारियां सुना है? क्यारियां वर्ड लाइंस में होती है ना। Yes, sir. गार्डन में भी आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने Sir. गार्डन में क्यारियां देखी हैं? लाइन देखी जो फील्ड्स में होती है जहाँ पे सीड्स को रखा जाता है, या गार्डन में भी जब हम गार्डनिंग करते हैं तो रखा जाता है, तो उसको प्लॉक करते हैं, है ना, क्यारियों को उठा देना। ठीक है, तो प्लो ए लोनली फरो का मतलब है सरवाइव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में सरवाइव करना। ठीक है बच्चे? Yes, sir. बेटा आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट वन थिंग टू यू, द मटेरियल which I will be sending you, the assignments which I will be sharing with you in the group, please do that assignments without any fail. If you are not going to do these assignment, definitely बेटा you will be कुछ important आप छोड़ रहे हैं। और English is a vast subject, है ना, English is a ocean। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही एज इट इज़ आएगा, idioms and phrases आएंगे, but try to keep 1 hour for English every day so you can cover maximum idioms। मैं आपके साथ मैक्सिमम कल भी idiom कराऊंगा, परसों भी idiom करेंगे, बट एट होम यू शुड ट्राई टू कवर मैक्सिमम idioms ताकि आप अपना CUT एग्जाम जो है अच्छे से दे सकें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir. इज देयर एनी डाउट? Sir.